آج آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اماں ہوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اس آرٹیکل سے آدم علیہ السلام کی کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کے باعث فرشتوں کے افواج بھیج کر انہیں سمندر برد کر دیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ اس قصے کی ابتدا اپنی اور فرشتوں کے مابین ہونے والے ایک مکالمے سے کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جب میں اسے مکمل کر لوں اور سوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجداریز ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ کم کریں یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کرو۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگوں قوم کی بنائے ہوئے اصولوں کی سختنفی کرتی ہے، اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے ہے، نہ کہ عجمی یا عربی روایات میں آیا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافری کائنات انسان کا حیولہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا، کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ آج سے تمہارے تسلیمات ہے۔ یوں دو اہم سبق بنینوں او انسان کو آفرینش پر ہی سکھا دیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ جیسے ہی ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، چھینک کی صورت میں اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکر گزاری کی رویش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقینوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اے بنی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو شیعہ کے نام سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری جالا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے جہد و عبادت کی بنیاد پر اجازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ مالاؤن کہنے لگا، میں اس انسان سے بہتر ہوں، اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالتو کائنات کے سامنے، اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا اور وہ رذیل اپنے من سے سفاریق اور دربار سے نکال دیا گیا۔ حکم باری تعالیٰ ہوا، تم اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کریں یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملاؤن روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔
फिर अपनी माहूलत मांगने की वजह बयान करते हुए कहता है कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊंगा उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला जाता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकसी और फसाद के बाइस फरिश्तों के अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया, और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल जाते हैं और जमीन के सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल ज़ात पात और रंगों कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्तनफी करती है, और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हैवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूं दो अहम सबक बनीनो ओ इंसान को आफरीनश पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इबद्दा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा, छिंक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकिनों के साथ कैसा ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, ए रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हज़रत आदम से पूछा जाता है तो वह झट नाम बता देते हैं। अब बारी जाला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो, और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में हम वाकिफ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था जो अपने जोहदो इबादत की बुनियाद पर इजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज ने रोका। तो वो मालाउन कहने लगा, मैं इस इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का तकबूर, वो भी हालतो कायनात के सामने। उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर गया और वो रजील अपने मन से सिफारीग और दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताला हुआ, तुम उत्तर यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि तकबूर करें यहाँ, बस बाहर निकल, तू जलील है। तो वो मलाउन रोज एक कयामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती है। फिर अपनी माहूलत मांगने की वजह बयान करते हुए कहता है
कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊंगा उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला जाता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकसी और फसाद के बाइस फरिश्तों के अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया, और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए, हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जन्नत में कुछ अरसा कायम के बाद हजरत आदम को एक खालिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हरदम रब की सराह में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर उस इल्म के बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाए? एक दिन जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हमनो औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी। औरत फिर पूछा कि तुम्हारी तख्लीक का क्या मकसद है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम से पूछते हैं कि आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हवा, बामानी जामदार। पूछा क्यों? तो कहने लगी, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मर्द औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमन-ओ-आश्ती के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हुसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहे। फिर आप दोनों को हुक्म होता है कि जन्नत में चैन व अमन के साथ रहो, मगर हाँ, ये ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? कोई उसे गंदुम बताता है तो कोई उसे सेब का दरख्त कहता है। तस्बीहात भी अलग अलग है। किसी किराए में वो दर्द और तकलीफ का दरख्त था तो कोई उसे जावेदानी हयात का फल बताता है। मगर सच तो ये है कि हम सिर्फ घुमान ही कर सकते हैं। कुरान में वाजे अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम न था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबहिन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी दरख्त की तरफ इशारा करके हजरत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो। मगर इंसान का फितनी तेज जासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इब्लीस उन्हें बड़े नासहखना अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाजों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जले अमजद उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ, तुम सब के सब यहाँ से जाओ, दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो कायम होगा और तुम वहीं रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आपसे से ये खता हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खैलत और आरिश वापस ले लो। चुनाचे आपके सर से ताज और दीगर आराई से उतार ली जाती है तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं, माफी माफी। निदा आती है कि ए आदम, क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं, नहीं या रब, मगर आपसे शर्म आ रही है। दुनिया में आकर एक अरसा सख्त निदावत की हालत में रोते हुए गुजारते हैं। फिर रहमान के रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम के सरचश्मे यानी अक्लो खरीद का मिला, और दूसरा पहलीवी की सूरत में उखरवी निजात का। इस अवलीन वही से आपको तौबा का सलीका और उसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और माफ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की माने तो बड़ी मोहब्बत से हजरत आदम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फिलहाल ये ही है, ये ही तुम्हारा आरजी कयाम है। मुझे याद रखना, और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दिवा करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मालल, तुम वापस अपने असली घर और मकान यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हजरत आदम के रवैये का तकाबुल इब्लीस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फर्क साफ वाजे हो जाएगा। एक गलती हजरत आदम और हवा से हुई और एक के इब्लीस से। दोनों के दरमियान फर्क क्या था? फर्क ये था कि हजरत आदम ने फौरी रुजू किया
और रो रो के माफ़ी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया। जबकि इब्लीस ढिठाई के साथ अपनी हरकत पर न सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकबूर की तवजीह पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ताक़यामत मल्यून गया हूँ, तो फिर बजाय माफ़ी मांगने के उल्टा अल्लाह को अपनी गुमराही का मोजिम ठहराने लगा। चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूं हमें मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दावे नेदावत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का ये इतराफ़ करते हुए दोबारा अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। और उसके बरखिलाफ है इब्लिस की सुन्नत अना परस्ती घमंड और मैं ना मानो की तकरार है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकबूर, घमंड और अना जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहम।